Hello friends, in this video we are going to learn periodic classification of elements in class 10th. Okay, so let's start periodic classification of elements. तो सबसे पहले हम करते हैं कि हमें periodic टेबल की क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी. वाई वी नीड periodic classification. तो सबसे पहले हमें ज़रूरत क्यों पड़ी ताकि जो स्टडी है एलिमेंट्स की वो हम सिंपलर बना सकें. तो कोई अगर आपसे पूछता है कि वाई वी नीड फॉर द periodic classification, the reason is to make the study of the elements easier because these elements have been divided into few groups in such a way that elements in the same group have the similar properties. ताकि जो इसलिए डिवाइड हमने किया ताकि जो हमारी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है वो एक तरफ आ जाए और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है वो एक तरफ आ जाए, ताकि क्या है कि सारा का सारा सिमेट्री मेंटेन हो पाए. इसलिए हमने क्या किया, क्लास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत पड़ी. नाउ स्टडी ऑफ द लार्ज एलिमेंट्स इज रिड्यूस टू फ्यू ग्रुप्स ऑफ द एलिमेंट्स. क्योंकि अगर हम चेक करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लास्ट पीरियोडिक टेबल है जो कि अब तक कंटिन्यूस चल रहा है और जिसके अंदर हमारी सारी की सारी सिमेट्री फॉलो अप होती है. ठीक है, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से मतलब कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले हम हमारे दो साइंटिस्ट ने दो क्या कहते हैं रूल डिफाइन किए थे. दैट इज फर्स्ट इज डॉमिनर ट्रेड. ठीक है, डोमिनर ट्री ने क्या कहा कि उसने अपने सिर्फ क्या किए कि कुछ एलिमेंट्स को ही रिकॉग्नाइज किया. तो डोमिनर ट्रेड्स में क्या था कि व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. क्या? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स नोन एज ट्रायड. अगर तो वो अरेंज है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, देन उसको हम क्या कहेंगे, डॉमिनर ट्राइड्स कहेंगे, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम रहेंगी. और एटॉमिक मास जो है मिडिल वाले का वो क्या होगा, एवरेज होगा एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स. मीन्स सपोज आई विल लेट्स do this one, lithium, sodium and potassium. Okay, so atomic mass of lithium, if I go and check, तो लिथियम का एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास जो है हमारे पास वो है हमारे पास 7. ओके, एंड जो हमारे पास पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो है हमारे पास 39. लिथियम पोटेशियम हो गया लास्ट में हमारे पास बस. लिथियम पोटेशियम हो गया क्योंकि जो इसका ट्रेड है वो है लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम. दैट इज LiNa. The symbolic is this. Okay. This is the main dominant traits: lithium, sodium, and potassium. Okay. So atomic mass of lithium is 7, potassium is 39, and also put it over here 7, and here the atomic mass is 23, and potassium is 39. Okay. So according to Dobiner, the sum of the two atomic masses, what line says, the atomic mass of the middle element of the triad was roughly the atomic masses of the other two elements average. Okay, so this sodium, this these two atomic masses is basically calculated as the average, and it will get the same result of that one. If I calculate if it is 7 and it is 39, if I calculated the average atomic mass, then it is 7 plus 39, and we will divide by 2 because average atomic mass is, so what we will calculate, it is 46 divide by 2, which is nearly equals to 23. So basically the sum of the atomic masses is basically equal to the average atomic mass of the middle of the element. मिडल जो मिडल हमारा एलिमेंट है उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इन दोनों का सम ऑफ द एटॉमिक मासेस which is result in the sodium. Okay, that is the reason. So basically,
This group is basically called the alkali metal group. So all these are metals. First of all, these all are metals, and all of them react with water. Reaction means they all are react with water to form alkalis, and hydrogen gas. Okay, and all of them, all of them have a valency one. Okay. Now, now we will go into the next part, that is called the alkaline earth metal. Because Dobiner has three elements that he recognized. First we have done. Next we have Ca, strontium, and barium. Then chlorine, bromine, and iodine. So I will explain each and every part. So next one we have the calcium, calcium, strontium, and barium. So this is one. So here it is 40 calcium, and strontium we have 88, and this barium we have 180, 137, 137. Okay, so again the same formula. If we add 40, so basically if I add 40 plus 137 divide by 2, what I'm going to result, that is 88.5, so which is nearly equals to 88. So this is basically the second one. The logic is for diamond red is following up. So this is basically alkaline earth metals. Alkaline earth metals. Properties. Alkaline earth metals की all are metals, and they will react with all of them oxides. All oxides are alkaline in nature. Alkaline in nature. ये जितने भी से ऑक्साइड्स बनेंगे सारे अल्कलाइन इन नेचर होंगे, और इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी होंगी, 2 होंगी। ठीक है, और इसको हम कहेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो ग्रुप है ये 3 उसने डिफाइन किए थे जो कि फॉलोअप हो रहे। लास्ट हमारे पास रह गया है alkaline earth metal, we have done. Next we have halogen groups. We have chlorine, bromine, iodine. So the same phenomena over here uses chlorine has 35.5, and bromine has 80 atomic mass, and this one has 127. Same calculation will process 35.5 plus 127 equal to divide by 2, gives you the result of 81 point, which is bromine atomic mass. So this is the three Dobiner triads that he is explaining. Okay, so next, so what are the limitations? Limitations क्या है इसकी डोमिनार की, क्योंकि वो पूछते हैं आपको कि लिमिटेशंस क्या है डोमिनार की, आपको अपने सिंपल वर्ड्स में लिख देना है। Failed to arrange all of them known elements. Failed
to arrange failed to arrange all the then known elements। इस टाइम पे जितने नोन एलिमेंट्स थे उसने सारे को अरेंज नहीं किया, उसने सिर्फ तीन ही कॉलम दिए। ओके, नेक्स्ट उसने could not he is only identify only three triads। बाकियों को क्यों नहीं उसने किया? सिंपली हम ओनली थ्री ट्राइड्स को ही जानते थे, बाकी हमें नहीं पता उस चीज़ के बारे में। ठीक है, सो द जो उसकी क्लासिफिकेशन थी वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। ठीक है, तो हम लिमिटेशंस में यही देंगे इस चीज़ को कि भाई उन्होंने सिर्फ तीन ही दिए थे और डोमिनेंट ट्राइड्स ने ओनली थ्री ट्राइड्स वर रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। उसने सिर्फ तीन ही दिए थे। ठीक है, और परफेक्टली उसने क्या किया, अरेंज नहीं किया सबको थ्री दी के, बाकी फिट नहीं बैठता। तो ठीक है, दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ द डोमिनेंट ट्राइड। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द न्यूलैंड लॉ ऑफ टेव्स। सो बेसिकली व्हाट ही डिड, उसने क्या किया कि जो हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें सा रे गा मा पा धा नि सा आता है, तो उसने उसको फॉलो अप किया। तो उसके अंदर उसने हर एक क्योंकि सा रे गा मा पा धा नि सा के बाद दोबारा से सा रिपीट होता है ना, तो उसने वैसे ही किया। उसने हर एक एलिमेंट को क्या कहते हैं, जो लास्ट वाला है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है फर्स्ट वाले के साथ मैच करवा दी। So when the elements are arranged in the order of increasing atomic masses, the properties of every eighth element, जो एलिमेंट होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन एलिमेंट, आर द रेपुटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जो मतलब कि जो भी लास्ट फर्स्ट वाला एलिमेंट जो हमारे पास जो एटॉमिक मासेस में हमारा सारा सारा इंक्रीजिंग स्टेट में होगा, तो जो एट्थ एलिमेंट है आर रेपुटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो कैसे चेक कर लेते हैं। एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट कि जो पहला जो हमारे पास इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की जो प्रॉपर्टीज जो हर एक एट्थ एलिमेंट की है, वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या होगी, मैच करेगी। तो सिंपल, एवरी एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। उसका ये कह रहा था वो कि एटॉमिक मासेस इंक्रीज कर रही है कि जो हमेशा जो हमारा एट्थ एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या होगी, सेम होगी। तो ही कंपेयर टू दिस लॉ ऑफ टेट्स फाउंड इन अ म्यूजिक, कॉल्ड इट एज लॉ ऑफ octaves। For example, the properties of lithium, sodium were found to be the same। ठीक है, तो हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि उसका टेबल कैसा बना था। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, सा रे गा मा नी सा। सा दोबारा रिपीट होगा। तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, plutonium, indium, arsenic, selenium, bromine, rubidium, strontium, selenium, vanadium, strontium. So these are the law of octaves. Okay. So some of the elements I also things like, okay. So first of all the three elements of lithium, sodium, potassium possesses the similar chemical properties. Sodium, lithium, potassium. This is sodium, lithium, sodium, potassium. Lithium, sodium, potassium basically all have the possesses a similar chemical properties. Okay, that is called the Newland law of Taves. Simply with the beryllium, magnesium, calcium. Okay, so let's check what are the limitations of that. So Newland law of Taves was applicable to the classification of up to calcium। उसका सिर्फ कैल्शियम तक की जो रूल था वो फॉलो अप हो पाया। आफ्टर द कैल्शियम एवरी एट्थ एलिमेंट डिड नॉट पोजेसेस द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट लिमिटेशन हम क्या लिखेंगे कि उसका सिर्फ जो था फॉलोइंग अप द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, वो सिर्फ कहाँ तक रह गया था, कैल्शियम तक ही रह गया था। ठीक है, तो तो सबसे पहले इट इज ओनली एप्लीकेबल अप टू दी कैल्शियम। करेक्ट, कैल्शियम तक ही था क्योंकि उसके बाद प्रॉपर्टीज फॉलो अप नहीं हो रही थी। सेकंड है कि न्यूलैंड ने ये अज्यूम किया कि सिर्फ 56 ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है,
उसने सिर्फ क्या किया, 56 एलिमेंट्स है तो उसने उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया, स्टैब्लिश कर दिया, एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर, बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स हमारे पास आए जिसकी प्रॉपर्टीज जो है फिट नहीं कर पाई न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग. In order to fit the elements into the table, Newland put even two elements together in one slot. फिट करने के लिए उसने क्या किया कि दो एलिमेंट्स को इकट्ठे भी रख दिया. ओके, तो दिस इज अगेन a drawback. Having different properties, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल टू एलिमेंट्स ऑफ कोबाल्ट और निकल का एग्जांपल जो उनको उसने एक में रख दिया इन जस्ट वन स्लॉट, एंड द टू कॉलम of the elements like fluorine, chlorine, bromine, which have the very different properties from these elements. Okay, iron, which is resembles to the cobalt nickel elements in the properties, was placed far away from these elements. जो iron है जिसकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट से मिलती है उसको दूर रख दिया. जो हमारे पास आयरन है उसकी प्रॉपर्टी जो है कोबाल्ट से मिलती जुलती है, ठीक है, उसको क्या कर दिया, कोबाल्ट और निकल इन प्रॉपर्टीज उसको दूर कर दिया, was placed far away from these elements. Before we end this discussion, Dobner trials also exist in the columns of Newland classification of elements based on the law of octaves. For example, sodium, lithium, that क्योंकि जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है इसके जो लिथियम सोडियम पोटेशियम तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना इसके अंदर, ठीक है. The periodic table is a chart of what is periodic table. Periodic table जो हमारा next है is a chart of elements prepared in such a way that the elements having similar properties occur in the same vertical group और कॉलम. तो उसमें हमारे पास कॉलम होता है या ग्रुप होता है या पीरियड्स होता है, ठीक है. तो जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी डिस्कशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वो बहुत ही हमें अच्छे से समझना है और फ्यूचर के लिए भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है. तो आई होप कि जितना मैंने आपको बताया है वो आपको इजीली क्लियर हो गया होगा. अगर कुछ क्लियर नहीं है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.